So, Jai Hind everyone. I welcome you back on Haritoshan UPSC, and I hope you're all doing good. So, in the last lecture that I have uploaded a few days back, uh, we covered the monsoon and more specifically the southwest monsoon part of climatology. And in this particular video, we will be covering the further parts of the monsoon topic. So, here there are, these are anomalies of the southwest monsoon. They are occurring due to several reasons. And when it comes to our examination, then there are five important themes: the El Nino, La Nina, El Nino and La Nina Modoki, Indian Ocean Dipole, and Mediterranean Oscillation. So there is one more event that occur, which is AMOC. So whenever, if it will be in news, so I'll be covering it then and there. All right. So, but as far as this particular video is concerned, we will be covering only these five topics. All right. So, let's just understand that what is the importance of this topic. When it comes to the prelims and our mains exam. तो prelims में क्वेश्चन इंडियन ओशन डायपोल से पूछा हुआ, मॉनसून से क्वेश्चन पूछा हुआ, और क्योंकि इंडियन ओशन डायपोल उसने पूछ लिया, तो भाई एल नीनो, ला नीना, मोडोकी, they also becomes important. All right, and also the Mediterranean Ocean. और मेंस की बात करें तो लास्ट टू लास्ट देखें तो परवैया, मतलब साउथ वेस्ट मानसून पे तो क्वेश्चन देता है, कभी ऑल्टरनेट ईयर्स पे पूछेगा, एक दो ईयर्स मतलब छोड़ के पूछ ही लेता है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है। बट एल नीनो से उसने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर इन पांचों टॉपिक्स की बात करें, तो जब वो एल नीनो से पूछ सकता है तो वो ला नीना और बाकी तीन टॉपिक्स से भी पूछ सकता है। सो फ्रॉम हियर वी कैन derive that all these five topics are important for both the prelims examination and the mains examination. So it's a humble, suggestion to all of you that you must cover this topic properly. All right. So let's delve into the in these particular, in these topics one by one. So first we will cover the El Nino event. This is very important. तो ये एक नेचुरली अकरिंग फिनोमेना है, और सिर्फ यही नहीं, ये पांचों के पांचों, ये सब के सब नेचुरली ऑकरिंग ही, राइट, नेचुरली ऑकरिंग ऑसिलेशंस। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का जो रोल इन इवेंट्स में होता है वो बस यही है कि sometimes the human activities they intensify these events, or sometimes they reduce the effect of any of these events, all right, whatever is concerned. So it just alter the behavior of these events when it comes to the anthropogenic activities. Anthropogenic activities, they are not the cause of creation of this phenomenon. They just influence it. The cause is natural. They all are naturally occurring oscillations. All right. So we were talking about the El Nino event. तो हमारी जो अप्रोच है, जैसा कि मैंने साउथ वेस्ट मानसून जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था और हम उसको बैठ के पढ़ रहे थे, तो उसमें बताया था कि भाई हमारे पास एक इतना राइटअप होना चाहिए कि हम 150 से 250 वर्ड का एक बेहतरीन आंसर जनरेट कर पाए। ऑल राइट। और हमारे पास उसी राइटअप में फैक्ट्स, एविडेंसेस और डेटा, जो भी रिलेटेड डेटा वो होना ही चाहिए, जिसकी वजह से हमारा प्रीलिम्स एग्जाम भी टैकल हो जाए। तो मेरी
यही अप्रोच है और यही चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कंटेंट क्रिएट किया है, so that both our prelims and mains examination can be tackled very properly. All right, and you will see that all this knowledge will be you will be using in cracking the prelims questions and the mains questions. All right, and I'll be making videos on them also, where I'll be explaining that how you can use this particular knowledge and generate questions and crack question in prelims. So तो वही अगर हम देखें राइटअप में तो सबसे पहले हमारा इंट्रो होता है। तो अगर मेरे को कहीं इंट्रो लिखना हुआ एल नीनो इवेंट का, तो उसमें मैं इस तरीके से अपना एक अच्छा सा गुड लुकिंग इंट्रो, एक डिसेंट सा इंट्रो मैं जनरेट कर सकता हूँ। तो वही ये सब क्या है, ये सी सरफेस एनोमली है, recorded in South Central Eastern Pacific between 5 degree north to 5 degree south of equator and from 150 degree east to 90 degree west. बहुत अच्छा कीवर्ड इसमें ये है कि इट जनरली सप्रेसेस द मॉनसून रेनफॉल। तो यही इन्हीं सारे कीवर्ड्स को यूज करके मैं एक बेहतरीन सा इंट्रो जनरेट कर सकता हूं इन द एग्जामिनेशंस। ऑलराइट, तो अगर इन कीवर्ड्स पे फोकस करें तो सी सरफेस एनोमली, जब एल नीनो इवेंट आएगा मैं वहां से प्रॉपर्ली समझाऊंगा, इस पे फोकस करूंगा। साउथ सेंट्रल ईस्टर्न पैसिफिक। ऑलराइट, सो लेट मी टेक यू टू द मैप ऑफ एल नीनो। तो जो तुम यहां देख रहे हो ना, ये साउथ सेंट्रल ईस्टर्न पैसिफिक, ये इवेंट यहीं हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से ये पोजीशन मैंने वहां पे डाल दी है ताकि आप स्पेसिफिकली उसकी लोकेशन को ट्रेस करके जो ऑलरेडी ट्रेस्ड है उसको वहां पे लिख सको, तो इट विल हैव अ गुड इम्पैक्ट, सो दैट द एग्जामिनर कैन गिव यू मार्क्स। ऑलराइट, सो एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें कीवर्ड जो है वो ये है कि बहुत ही स्पेसिफिक, 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ। ऑलराइट, इक्वेटर के ये पोजीशन कौन सी है? नाउ लिसन इट वेरी केयरफुल। तो आपको पता है कि हमारी एक इंटरनेशनल डेडलाइन है, वो कौन सी है? यहां से जाती है इस तरीके से, इंटरनेशनल डेडलाइन 180 डिग्री ईस्ट की तरफ से निकलती। तो वहां पे हमारे पास क्या था? 150 डिग्री ईस्ट टू 90 डिग्री वेस्ट। तो यहाँ ये वाला जो पोर्शन है 90 डिग्री वेस्ट वाला है, और ये वाला जो पोर्शन है वो 150 डिग्री ईस्ट वाला है। तो वो फिनोमेना यहीं ऑकर हो रहा है। ठीक, तो इसीलिए मैंने वो लोकेशन भी डाल दी है ताकि आप उसको भी लिखोगे तो वो बहुत ही स्पेसिफिक डेटा हो जाए। अगर आप उसको कोट कर दोगे ना एग्जामिनेशन में, आई मीन द एग्जामिनर विल इम्प्रेस, द पेपर चेकर, he will be or she will be impressed that wow, the person knows the phenomena, or he or she has a perfect grip or a decent grip over the subject, so he will give you very proper marks. तो इसीलिए ये कीवर्ड्स जो हैं ये डालना बहुत जरूरी है अपने इंट्रो में, अपनी मेन बॉडी में, कहीं पे भी जहां पे भी आपको कीवर्ड्स डालने की जरूरत पड़े। और पूरा एग्जामिनेशन ही अपना मेंस वाला जो वो कीवर्ड वाला है, so it's very important to have these crisp and to the point keywords in our answers. All right, so let's move forward. So this is clear, this is clear now, and generally suppress the monsoon rainfall। ये पूरा एल नीनो जब समझना ही है, उसका मैकेनिज्म समझना है, तो वहां पे ये सारी चीजें आ जाएंगी, तो मैं वहां समझा दूँ। अच्छा, एक चीज समझो, ये जो एनसो करके एक वर्ड आप देखते होगे, इट इज नॉट इक्वल टू एल नीनो। ठीक है, अब सुनो, ये एनसो क्या है?
और एल नीनो क्या है? ये जो एनसो है ये एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर तीन फेजेस होती हैं। एक तो न्यूट्रल फेज, एक एल नीनो और एक ला नीनो। So it is the whole mechanism where all these three processes happen at some point of time. All right, जिसमें से एल नीनो एक है। तो एल नीनो इज अ पार्ट ऑफ एंसो, इट्स अ सबसेट ऑफ एंसो। ऑल राइट, तो अब एल नीनो को हम अच्छे से पढ़ते हैं। हम एल नीनो देख रहे थे, तो इसमें हमें देखना है द नॉर्मल कंडीशंस कि मतलब कि एल नीनो से पहले हमें जो उसकी न्यूट्रल फेज थी उसके बारे में समझना है कि वहां क्या हो रहा है। तब उसके बाद हम जब एल नीनो को पढ़ेंगे इट विल बी मच मोर क्लियर टू अस। तो नॉर्मल कंडीशन में होता क्या है, let me take you to the diagram. Yes, so what happens is that there is low pressure creation when it is summer in northern hemisphere. There creates a low pressure area over the Great Plain region of India and the Tibetan Plateau, which makes the air to rise up. और फिर जब वो एयर राइज हो जाती है इट गोज टुवर्ड्स हेयर एंड हेयर ऑल्सो। So the air which is going in this particular direction, it will forced to descend over the Mascarene Island and create Mascarenes high. Why it is creating Mascarenes high वाला कंसेप्ट आपको क्लियर है ना कि वो क्यों डेवलप हो रहा है वहां पे? तो अगर नहीं है तो लेट मी just tell you about it in a very uh, brief manner. So just look here. This is Earth. This is 0 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। तो जब आपका हेडली सेल जो है यहाँ से उठती हुई जब डिसेंड करती है 30 डिग्री साउथ पे या 30 डिग्री नॉर्थ पे या 30 डिग्री साउथ पे, तो वो हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करती है पूरे 30 डिग्री साउथ पे। और ये 30 डिग्री साउथ पे ही इसी बेल्ट पे आपका मैस्करीन आइलैंड जो है जो कि मेडागास्कर के पास पड़ता है। अगर मैं छोटा सा डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे जो मैस्करीन आइलैंड है जो कि मेडागास्कर के पास ही है जस्ट, वहां पे हाई प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हाई प्रेशर बेल्ट में है। सो द हाई प्रेशर एरिया और द मैस्करीन इज हाई इज ऑलरेडी देयर, but when it is northern hemisphere summer, or we can say there is winter in the southern hemisphere, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई इक्वेटर यहां से जा रही है। अब जब इक्वेटर यहां से जा रही है तो ये पूरा का पूरा एरिया it is under the influence of winter. So that's why with the southern hemisphere winter the masculine is high gets intensified, and that's why the low pressure uh, area created winds they force to descend over this particular region. और जब वो यहां पर डिसेंड हो जाती है then they move towards the Indian subcontinent as the southwest monsoon. This whole subject matter we have already discussed in our previous video of southwest monsoon. So this was the normal condition that occurs during the neutral phase of the ENSO event. कि normally जो air है वो ascend करती है from Indian subcontinent during summers and forced to descend in Indian Ocean over Mascarenes high. And as a result,
the surface winds blow from equatorial part of Indian Ocean, picking up the moisture and giving rainfall over India. So this thing is what normally happening. This phase is irrelevant for as far as the India is concerned, because it doesn't influence, and that's why I haven't taken it very seriously, and that's why we are just briefly discussing it. Our main thing will be the El Nino and its mechanism. तो यहाँ पे मैंने तुम्हें बेसिक पॉइंट ये मैस्क्रीन हाई वाला बता दिया, और ये जो भी पूरा प्रोसेस हो रहा है, देखो ये पॉइंट्स इसी तरीके से लिखे होंगे आगे भी। ये पॉइंट्स आप भी जनरेट कर सकते हो और आप भी लिख सकते हो, लेकिन ये पॉइंट्स का याद होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो याद कैसे होता है? आप डायग्राम को याद रखो। 11th-12th व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स बड़े बड़े डेरिवेशन हुआ करते हैं, स्पेशली इन द मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर में। आप अच्छे से डायग्राम को समझो, and from that diagram only you will be able to generate the whole derivation of it. तो वैसे ही हमने बात कर ली इस वाले पोर्शन की। यस, इस वाले पोर्शन की हमने बात कर ली कि न्यूट्रल फेज के दौरान एल नीनो की जो ये वाली एक सेल है, जैसे हम सोमालियन जेट स्ट्रीम के नाम से भी जानते हैं, ये विदाउट गेटिंग इन any external influence of El Nino, it moves undisturbedly, all right, as it was flowing, or as the mechanism was happening in the southwest monsoon, all right. In the neutral phase of El Nino, it doesn't comes under any influence, and it moves as it is, at it used to move earlier, that the low pressure area over here, वो वहाँ पे एयर जो है वो राइज कर जाएगी, देन यहाँ पे मैस्करीनीज हाई पे इट विल फोर्स टू डिसेंड, एंड देन इट विल गो एज साउथ वेस्ट मानसून टुवर्ड्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये पहली सेल हो गई। अच्छा, ये जो सेल है वो लैटिट्यूडनल है, ठीक है। लैटिट्यूडनल का मतलब क्या हुआ? ये एक लैटिट्यूड हो गया और एक ये लैटिट्यूड हो गया, तो इस लैटिट्यूड से इस लैटिट्यूड पे आ रही है ना, ये इस लैटिट्यूड से इस लैटिट्यूड पे आ रही है, एंड देन इट इज गोइंग टुवर्ड्स बैक टू द सेम लैटिट्यूड। तो ये लैटिट्यूडनल सेल है। अभी हम इसकी बात करेंगे। ये सेल है वॉकर सेल। तो ऐसा नहीं है कि वॉकर सेल इज नॉट देयर इन द न्यूट्रल फेज, इट इज देयर इन द न्यूट्रल फेज, बट व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इट इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग द साउथ वेस्ट मानसून, वी विल अंडरस्टैंड दिस हियर नाउ। तो ये जो वॉकर सेल है ये लॉन्गिट्यूडनल है। जब ये लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल वाला कंसेप्ट आ गया तो उसको भी मैं कवर कर लेता हूँ। ये लॉन्गिट्यूडनल वाला है, क्यों? क्योंकि ये पैराचिली कोस्ट, ये इंडोनेशियन वाला रीजन, ये दोनों का जो लैटिट्यूड है वो तो सेम ही है ना, बस एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड की तरफ वो बढ़ रही है। दैट्स व्हाई इट इज लॉन्गिट्यूडनल सेल एंड द सोमालियन जेट स्ट्रीम इज लैटिट्यूडनल सेल। अच्छा, व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस? So that nothing can be skipped, or there will not be any shortage of knowledge, all right? Because of that you will not be uh, able to crack the prelims question. So that's why I'm just focusing on these uh, tidbits of concepts, so that these concepts build your knowledge, these concepts make your concept robust, they make your grip over the subject good, and from here only you crack your prelims question, the objective type questions, all right? That's why I'm telling you all this. तो न्यूट्रल फेज के दौरान ये जो आपका
पेरुचिली कोस्ट वाला रीजन जो होता है वह हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो रखा होता है। तो यहाँ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो रखा होता है। क्यों? बिकॉज देयर इज अपवेलिंग ऑफ द कोल्ड करंट हियर। तो वॉल्कल सेल, जो वॉल्कल सेल है यहाँ पे इन केस ऑफ न्यूट्रल फेज ऑफ द एल नीनो, यहाँ पे एयर राइज होती है, इट गोज अपवर्ड, bifurcates but and comes here and then descends down here। तो ये जो लूप है फिर यहाँ पे let me erase it, getting तो यहाँ पे ये वाला जो लूप है, तो वो जो ट्रेड विंड्स यहाँ पे चल रही हैं, they move from east to west, you know, this is the eastern portion and this is the western portion। वो यूं करके मूव कर रही होती है। तो जो यहाँ पे डिसेंड डाउन हुई और जो यहाँ पे असेंड अप हुई थी, वो जो लूप यहाँ पे ये क्रिएट हो रखा था, अब ये लूप क्लोज हो जाता है इन ट्रेड विंड्स की वजह से, कि वो पेरुचिली कोस्ट से इंडियन कोस्ट की इंडोनेशियन रीजन की तरफ दे मूव एज ट्रेड विंड्स, और ये जो वॉल्कर सेल का जो लूप होता है वो क्रिएट हो जाता है। तो वॉकर सेल जो है वो यहाँ पे अपना पाथ को ट्रेवल कर रही होती है और जो सोमालियन जेट स्ट्रीम है वो अपने पाथ को ट्रेवल कर रही होती है। ये दोनों आपस में इंटरेक्ट नहीं करते हैं ड्यूरिंग द न्यूट्रल फेज, और ये जब इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते हैं उसी को हम न्यूट्रल फेज कहते हैं, इस तरीके से कह सकते हैं। तो न्यूट्रल फेज का इंडियन मॉनसून के केस में कोई भी रेलिवेंस नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय इट। सिंपल सी बात है, यही न्यूट्रल फेज है, और वहीं वहीं वो चीज मैंने वहां लिखा रखी है। अब हम बात करेंगे एल नीनो के मैकेनिज्म के, कि अब एल नीनो क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। सो लेट्स मूव इनटू इट, erase it first। yes